सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं नमामि कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रवन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट I'll use a mixed language. Okay, so somebody of you might be wanting English, some Hindi. So I will use a mixed language. Can you hear me? आवाज आ रही है ना clearly? आ रही है? हाँ माँ आ रही है। आ रही है ना? अच्छा। तो mixed wala language is a mixed language. So this is a very fundamental text. बहुत basic text है ये, but it is a very important text for sadhak. For a sadhak के लिए, क्योंकि इसमें there are around 40 sadhanas that have been told. 40 sadhanas meaning more also. We can bring out more also, but basic 40 sadhanas have been told in this. So sadhana, it is easy to understand also through this text, through the pointers for a sadhak, that what sadhanas should be done, how should we start a sadhana, how should a sadhak's life should be, because a sadhak otherwise his time is very dissipated or distracted into the whole world. उसका समय जो उसको 24 घंटे मिला है, वो समय वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होकर वो सिर्फ अपने गोल पर न लगा के वो बहुत इधर उधर करता रहता है. So to have a completely guided life, guidance of the Shastra has been given to us by this Sadhana Panchakam. So this Sadhana Panchakam is also called Sopan Panchakam. It has got 3-4 names also. इसको सोपान पंचकम भी बोलते हैं. Why sopan? Sopan meaning stairs, steps जिसको हम बोलते हैं ना, stairs. So sopan panchakam meaning the steps have been given, because the entire upasana has been given in steps. पूरा का पूरा जो साधना है उसको steps में दिया हुआ है, इसीलिए इसको सोपान पंचकम भी बोलते हैं. तो सोपान ये होता है सोपान आरोहण न्याय. सोपान आरोहण न्याय इसको बोला जाता है. तो जैसे it starts with what वेदो नित्यमधीयताम्, यहाँ से शुरू होता है. And then the third verse you will see that is also saying Brahmasmi iti vibhavyatam. So ultimate culmination should be in Brahmasmi, starting from the studies of the scriptures, and it will end into the Brahmasmi iti vritti. This vritti has to be it should be there. Concluding vritti should be this only. So therefore, ultimately, this is what a person's goal should be. Another name of this is also called Upadesh Vakyam, Upadesh Panchakam.
because 5 types of advices are also given in this Updesh Panchakam. First one was the Sopan Panchakam, then Updesh Panchakam, Sadhana Panchakam is also there, and this is also called Advaita Panchakam because the Advaita philosophy has been propounded in this. Advaita के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका एक नाम है Advaita Panchakam also. Okay, so what is the meaning of sadhana? We should be very, very clear that this is the sadhana panchakam, meaning it is leading to the Advaita only, that one's inner desire should be to know the truth. एक महात्मा कहते थे अगर असत्य सत्य है तो मैं असत्य के लिए अपना जीवन दूंगा. If the truth is false, then I will live my entire life in search of falsehood. तो ऐसा एक जुनून, ऐसे एक भावना होनी चाहिए हमारे अंदर that I want to know the self in this very life. What is that truth? What is that self? What is that Brahma? What is that Atma? इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं जानना. ये एक जुनून होना चाहिए हमारे अंदर. So what is the sadhana? What is the meaning of sadhana? There is something called sadhya, and there is something called sadhak, and there is something called sadhana. तीन चीजें हैं. साध्य है हमारा, साधना है हमारा, और एक साधक है. ये तीन चीजें हैं. तो जो that which makes the sadhak was wanting to know the sadhya, that is called sadhana. Through which a sadhak, जो साधक जो जानना चाहता है उस सत्य को, उसको हम साधक. यहाँ की भाषा. What is a sadhak? वो जानना चाहता है उस सत्य के बारे में. He wants to know the truth. What is the ultimate truth? He wants to know that. The instrument to know that truth is called sadhana. Sadhana or sadhana, whatever. And that truth that has to be known, ultimate goal, that is called sadhya. Sadhya. So Brahma in this text, we have the Brahma as a sadhya and we are the sadhak. And this is called to reach that goal, the path, the process that has been proved to us, जो एक पूरी तरह से एक procedure बताया गया है वहाँ तक पहुँचने का, that is called the sadhana. ये तीन चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, साध्य, साधक और साधना. He needs some means. जैसे मुझे अगर आपके घर पहुंचना है, I want to reach your house, you've invited me, so I need some vehicle for transportation to move to your house. I want to have some other kind of instrument. Either I can walk, either I can have a bus or a 4-wheeler or a 2-wheeler, whatever. So in this case also, when I have to reach my goal or the Brahma, the truth, I want to know that. So these are the sadhana to reach that goal. मतलब ये है हमारे पास में, ये जो हम लोगों को साध्य बोला गया है, scriptures जो है, शास्त्र जो है, whatever they have told about the sadhya, and at present what I feel about myself, जो स्क्रिप्चर्स है उन्होंने जो एक चीज बोली है और मेरे अंदर में बहुत बड़ा एक गैप. There is a huge gap between what the scriptures are telling and what I am. बहुत बड़ा गैप. स्क्रिप्चर्स में हमारे बारे में शास्त्र में बोला गया है कि अहिंसा परमो धर्म, बोला गया है कि सबको रेस्पेक्ट करो, सबको प्यार दो, राग द्वेष मत करो, क्रोध मत करो. But at present I see myself full of these things. ये सब दुर्गुण मुझे दिखता है अपने अंदर. तो जब ये सारी चीज, there is a vast gap that has to be filled. This gap has to be filled. उसको fill करने का उपाय क्या है? This sadhana. The process he needs to attain that highest. जो scripture में बोला गया है, that is the highest place I have to reach. मुझे ऐसा बनना है कि इसी जन्म में मुझे ऐसा बनना है. तो जो मैं करना शुरू करूंगी वहां तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं साधन या साधना.
वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर हमको दिया गया है उसमें हमारा लाइफस्टाइल हो सकता है. My lifestyle has to be changed. My attitude has to be changed. My schedule has to be changed. My हो सकता है my chanting or the puja that I'm doing that has to be changed. Many things have to be changed and some new things have to be put. Some things have to be taken out. I'm too much into the world sometimes. वो curtail करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास में बहुत limited time. हम सब लोगों के पास में बहुत limited time. I have a limited time, but the destination is far away. Until I realize that the destination is far away, I won't work on that. मुझे पता है अगर कि मुझे बहुत दूर जाना है और रात होने वाली है, शाम तक मुझे वहां पहुंचना है, तो मैं कुछ भी करके कोशिश करूंगी कहीं पे भी इधर उधर अभी टाइम वेस्ट ना करे. मुझे दिखाई दे रहा है मॉल, मुझे दिखाई दे रहा है खाने की जगह, मुझे दिखाई दे रहा है कोई मेरा फ्रेंड रास्ते में दिखाई दिया, हम उनको बोलेंगे कि आई विल टॉक टू यू लेटर. अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे वहां पहुंचना है शाम के पहले. या हमको जब ट्रेन पकड़नी रहती है, फ्लाइट पकड़नी रहती है, हम सब काम छोड़ के हम लोग बस एक ही जगह हम कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं. हम लोग को कुछ उस समय दिखाई नहीं देता. सिमिलरली दिस आल्सो वी हैव टू ब्रिंग इन सम थिंग्स इन आवर शेड्यूल. हम लोगों को अटेंशन देना पड़ेगा किसी किसी चीज में. कभी कभी हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हमारे जीवन में. कभी सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सम सिचुएशंस आर वेरी वेरी अटेंशन सीकिंग. Some situations I can't accept. Some people I can't accept in my life. बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग को उसके ऊपर काम करना है. They are unnecessarily taking over my time, my वृत्तिस. जैसे होता है ना, हमारा घर है, हमने घर दिया है और कोई फालतू में आके उस पर कब्जा करके बैठा हुआ. I own the house, I own the place, but somebody else has come into it and he is staying illegally. Similarly, these thoughts, these tasks which will not lead me anywhere, which will not make any output, any positive output, they are taking away my time unnecessarily. Because time is very important for me. हम सबके पास में we all know that हमारी सांसें गिनी चुनी है, सबके पास में हमारे. तो जितना हम सांस लेते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, हमारे पास में से टाइम तो चला ही जा रहा है. We won't be having much time left. क्योंकि ये सारी चीजें, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ, मतलब बहुत ज्यादा हमारा टाइम ले लेते हैं. और यहाँ पे ही हमको साधना डालने की जरूरत है. When after we realize the goal, हमारा गोल ही सेट नहीं है इस लाइफ. हमारा गोल संसार नहीं हो सकता है, इस बात की क्लैरिटी आते आते 70 साल हो जाते. 70 years of our life we waste in concluding that this sansar should not be our goal. This is a paradoxical statement, but this is a truth. ये बहुत एक अजीब सा statement है, but this is a truth that we need the whole life to understand that whatever we did was not right. आखिरी में आके हम लोग इसी conclusion पे आए. But congratulations, अगर हम लोग आए हैं, उस स्थिति में भी आए हैं, तो भी अगला जन्म हमारा बच गया. वहां से हम लोग शुरू कर सकते. इट इज नेवर लेट. संसार में जब हम लोग उठते हैं तो ये काम हम लोग करें, बहुत बहुत सारा काम करें, उसमें कोई मैं गुंजाइश नहीं है, मैं मना नहीं कर रही. बट व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट वर्क? What is the intention behind that task? Is that purity of myself? Is that name or fame? Is that the goal? That is the truth that I want to know? Is that some satsang? Is that giving happiness to somebody? What is the goal? वो intention क्या है? That will matter. That will matter the most. हम काम तो खूब कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं. Success does not depend on the success of the event outside. मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ कि सक्सेसफुल इवेंट हम लोगों ने किया, बहुत बड़ा इवेंट किया, बहुत लोग आए, बहुत नाम और फेम हुआ, हमारा बहुत सारा बहुत अच्छे वाह ही मिली हमको बाहर. पीपल हैव रियली they have praised us a lot. We have been known throughout. That is not success. Success is what have we gained inside. हमारे अंदर हमारी प्योरिटी कितनी आई उस काम से,
हमारे अंदर से किसी व्यक्ति के लिए राग द्वेष कम हुआ भी नहीं, एक्चुअली बढ़ जाता है. It increases after every word. So we are not actually using the tasks, using the work outside, using the project outside for inner purification. This has to be understood. That are we using the other objects or the work outside or the relations outside or the money outside or the name and fame outside for my inner purity? संसार में रहकर भी बहुत गृहस्थों ने, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने अपनी सेल्फ को जाना, अपने अंदर उस प्योरिटी को लाए, वो शुद्धता को लाए, अंतःकरण की शुद्धता हुई. भरत जी को देख लीजिए, आप जनक जी को देख लीजिए, आप शास्त्र में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. बट इट इज डिफिकल्ट, बहुत बहुत डिफिकल्ट है कि हम कर्म मार्ग में भी लगे रहें और उसको हम लोग साधना भी बनाते रहें. तो हमको देखना पड़ेगा ये सब कर्म से हमारा जो है, हमारा व्यवहार शुद्धि आ रही है कि नहीं, हमारे मन शुद्धि आ रही कि नहीं, वृत्ति शुद्धि आ रही. All this शुद्धता has to be there. Otherwise there is no use of doing all these things. No use. लास्ट में क्या होगा? शून्य. हमने खूब काम किया, खूब सारा काम किया, आखिरी में क्या हुआ? हमारा मन मैला हो गया. आखिरी में क्या हो गया? हमारा राग द्वेष आ गया. आखिरी में क्या हो गया कि उस व्यक्ति से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे थे, काम करने के बाद खराब हो गए. आखिरी में क्या हुआ? हमारे मन में कोई दुर्गुण नहीं था अभी तक, वह भी दुर्गुण आ गया. इसको देखते देखते किसी को क्रिटिसाइज करते करते वो दुर्गुण हमारे अंदर आ गया. जब तक हम लोग के सारे एंटीने खड़े नहीं होते, we all have antennas. We have to use those. We have to be alert. Like Gurudev used to say, alert, quiet and vigilant mind. We have to be alert all the time. संसार में जब तक है हम लोग, आखिरी तक हमको अलर्ट रहना पड़ेगा. आखिरी तक. आपको वो वाली कथा पता है, मुर्दा सच्चा है, कब्र सच्ची है या मुर्दा सच्चा है? मैं कई बार इसको बता, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली कथा. एक बार एक महात्मा जी आए एक विलेज में. ही केम एंड ही स्टार्टेड स्टेइंग देयर इन द विलेज. सो he was staying there and he used to go fetching for alms and fetching for भिक्षा everywhere. तो एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वैश्या थी जो इनको देखती रहती थी. और वो जा के पूछते थे कि मुर्दा कब्र सच कब्र है, कहीं पे कब्र है? तो सब लोग पूछते थे मुर्दा है, तो बोलते थे हाँ मुर्दा है. बोलते थे कब्र सच्चा या मुर्दा सच्चा? तो कुछ नहीं जवाब देते, कुछ भी बोलते नहीं थे. अब समझ रहे हैं मेरी बात? वो जा के पूछते थे कब्र है, तो सामने वाला जो पूछता था वो पूछता था मुर्दा है. अल्टीमेटली आई विल टेल यू द आंसर व्हाट इट इज. तो आखिरी में उनकी मृत्यु. और ये व्यक्ति, ये जो वैश्या थी, she used to always stand by her door, the prostitute, and she used to ask, कब्र सच्ची या मुर्दा सच्चा? What is reality? What is the truth? Is the murda real or the kabr is real? Now he never answered her. Never answered. Now ultimately he died. When he died and his arthi was going like that, he took samadhi and everybody was taking him like that. When that arthi was going in from her house, in front of her house, he was dead. He rose from his bed. I mean, from this thing. He rose and he said, "Kabr sachi, murda bhi sacha." And then again he fell down, and then they took him. It means, what is the reality? I don't know if you all understood the meaning, the crux of it. That till the end we can't believe our mind. हमारे मन के ऊपर we can't trust. We can't trust the mind till the end. That's why this Mahatma was not replying to the question of that prostitute, whether the qabr is real. He wanted a place to stay, that is a qabr. But he wanted to stay as a murda. He wanted to stay as a dead body, not having any desires, dead to the world. So therefore he used to go and ask, kabr hai, kabr hai. So people used to ask him, murda hai? And he never answered. So this prostitute used to ask him,
is the qabr real or the murda is real? Then my qabr will also be real. He never answered. So ultimately, when he died, that time he rose from his deathbed and he said, qabr bhi sachi hai, murda bhi sacha hai. So till the end, we can never rely on our mind. We have to do sadhana. If a person is a sadhak, he continuously does sadhana. Whatever time is left, he will continuously do his sadhana, not leaving a single moment. Because I told you just now, the gap is so much. We have to reach so far. But the gap is so much that even if we do continuous sadhana also, we don't know whether we will reach in this bottom. So much of like Israel is fighting on 7 fronts. We are fighting there also, Bangladesh also here, China is also there. Similarly, we have opened so many fronts in our life for the mind. But we are not alert about the fronts that we are facing. We are leading very careless life, carefree life. We are not very careful. And therefore, a person, when he is not careful, what will happen? He will lose whatever he has. जितनी संपत्ति उसके पास में है, जो हम लोग बोलते हैं समाधि षट संपत्ति हुई, हमारा साधन चतुष्टय हुआ, वो सब हमारा गुम जाता है. ऐसे सेंध लगी हुई है हमारे बैग, फूटा बन गया है, छेद हो गया है. Whatever we are collecting, that is going on. Because of our व्यवहार. So mind becomes capable of attaining this truth when this sadhak prepares his mind. Continuously is preparing his mind. So through sadhana, what happens? 2 things happen. He purifies his mind and there's a clarity coming in for his goal. 2 चीजों की आवश्यकता होती है हमारे अंतःकरण शुद्धता और हमारा जो गोल दिखाई दे रहा है, लक्ष्य जो साध्य है, उसके लिए हमारी क्लैरिटी आती रहती है. हमारा विजन क्लियर होता रहता है, हमको दिखाई देता रहता है कि कितनी दूरी है अभी भी. नहीं तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा, हमको संसार दिखाई देता है. ये चीज गड़बड़ हो जाती है. ठीक है. और स्क्रिप्चर्स जो है हमारे बोलते रहते हैं बेचारे. सारे शास्त्र हमारे चिल्लाते रहते हैं. रसो वैसः हे वायम रसज्ञ आनंदो भवति, हे वायम दग्ध्वा आनंदो भवति. तुम ही हो आनंद स्वरूप, तुम ही हो रस रूप. हमको लगता है हम तो नीरस है, बेरस है. कहाँ रस है हमारे अंदर? कोई रस नहीं है. रस तो संसार में है. हा हु. ये ज्ञानी का जब ज्ञान हो जाता है, ये शास्त्र में पता है, वो इस तरह से गाना गाने लगता है. अन्नम वै अन्ना दो, हम अन्ना दो. मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्ना दो, मतलब मैं ही एंजॉयर भी हूँ, मैं भी एंजॉयड भी हूँ. गाता है वो, अपनी मस्ती में रहता है वो. ये why am I not experiencing this? When this is a शास्त्र that is telling us कि ये एक्चुअल स्थिति है एक ज्ञानी की, एक साधक की ऐसी होनी चाहिए. देखिए कितना गैप है. देखिए कैसा हो गया गैप. इसी गैप को हमको भरना है. मयि एव सकलं जातम्, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम्. कैवल्य उपनिषद बोल रहा है मयि सर्वम लयम याति. मेरे अंदर से पूरा का पूरा संसार आता है. इस स्वप्नावस्था में हम ही तो क्रिएट करते हैं सब कुछ. हम ही सारा का सारा संसार बनाते हैं. हमारे अंदर सुबह उठ के सारा का सारा लीन हो जाता है. दैट मीन्स व्हाट? ये संसार भी हम ही ने क्रिएट किया हुआ. ये एक्सपीरियंस जो शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र is screaming and telling us about the experience that we should have, but we are not having at present. हमको क्या लगता है? हम संसार में हैं, बना के हमको डाल दिया गया संसार में. संसार किसी एक व्यक्ति ने बनाया, ईश्वर जिसको हमने नाम दे दिया है, और उसने बना के हमको संसार में डाल दिया. पता नहीं कब से हम लोग आए संसार में, कब तक हमको रहना पड़ेगा. ऐसे ही हम लोग जो है अपना जीवन दुख सुख में हमारा ऊपर नीचे होता रहेगा. शास्त्र बोलता है ऐसा नहीं है, तुम ही क्रिएट कर रहे हो. मत बनो पागल. अपने एक्सपीरियंस अनुभवों को इतना सच मत मानो. ये सब आता जाता है, कोई भी चीज यहाँ टिका हुआ नहीं है. और हम दुखी होके बैठे रहते हैं, हारमोनियम लेके रोते रहते हैं.
हम लोग गाते रहते हैं, अपना दुखड़ा किसी को सुनाने जाएंगे, वो बोलेगा रुको 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 रुको, आई हैव मोर सॉरोज टू टेल। मेरे पास में एक लंबी लिस्ट है, आपको पता है, अरे आपकी सिर्फ इतनी परेशानी है, मेरी परेशानी सुनिए आप। और फिर वो बताने लगेगा अपनी परेशानी, हमको चुप करा देगा, हमको मिलेगा हाँ 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 बहुत परेशान। हमको हम ये भी बोल देते हैं कभी कभी, पता नहीं आपने सुना है, मेरी परेशानी भगवान भी दूर नहीं कर सकते। वाह भाई वाह महात्मा जी, मेरी परेशानी भगवान भी दूर नहीं कर सकते, वो तो प्रणाम करना चाहिए। तो कौन है गुड सीकर? हु इज अ गुड सीकर? हु इज अ गुड साधक? जिसके पास भी एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य है, ओनली वन साध्य। वो क्या है? मुझे आत्मा के बारे में, सेल्फ के बारे में, ट्रूथ के बारे में जानना है। बाकी सब क्या है वो भी मुझे जानना है, पर ट्रूथ जो है, अल्टीमेट ट्रूथ जो है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, उस ट्रूथ के बारे में मुझे जानना है। एक ही लक्ष्य, जैसे अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, पूछा गया, सब लोगों से पूछा, सब ने कहा ये भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, आम की पत्ती भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है, आम भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया रस वाले फल लगे, चिड़िया भी दिख रही है। अर्जुन को क्या दिख रही थी? सिर्फ वो आंख दिख रही थी जो जिसको उसको टारगेट करना है, उस वो वाली दृष्टि से ये साधक जो है हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कुछ नहीं दिखता उसको। तड़पन हमारी नहीं है अंदर से, हमको तड़प के हमको बोलना चाहिए कि कब हम लोग जो है इससे बाहर आएंगे, हम लोग किस तरह से बंध गए हैं, क्यों बंध गए हैं, कब तक हम बंधन में रहेंगे, जो बंधन है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, उस बंधन को हमने बांध के, रियल मान के हम लोग बंधे हुए हम लोग घूम रहे हैं। गुरुदेव कहते थे, if a person has got 10 number shoes का जो नंबर है, that is his 10 number shoes, he has purchased 8 number shoe and the whole day he has to fit himself in that 8 number shoe, so much of pain he will under. Ultimately he'll come home and he wants to take that shoe out. उसी तरह से हम लोग जो है, हम है अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बोला हम है अनंत, हम लोग इस बॉडी के अंदर फिट होके बैठे हुए हैं। आपका आइडेंटिटी क्या है? हम है सो एंड सो। हम कौन है? अनन्या चैतन्य। कौन है हम? हम है ब्रह्मचारिणी। कौन है हम? हम है आसाम से। कौन है हम? हमारी ये क्वालिटीज है, ये क्वालिफिकेशंस है, हम यहाँ रहते हैं। जितने गुण हम लोग डालेंगे, इतना हमको याद होना चाहिए, उतना हम लोग जो है अपने आप को छोटा बना रहे हैं, बड़ा नहीं। देखिए विजन चेंज हो गया ना, विजन चेंज हो गया। क्या हमको पता ही नहीं है कि जितना गुण हम अपने अंदर डालेंगे, उतना हम लोग निर्गुण से, मतलब हमारे सेल्फ से, हमारे ट्रूथ से हम लोग दूर जा रहे हैं। हम लोग कौन है? हम लोग निर्गुणी हैं, हम लोग निराकार हैं, इसलिए हम लोग अनंत हैं, इसलिए हमारे आनंद है स्वरूप। पर जितना हम लोग अपने ऊपर कंडीशंस चढ़ाते जाएंगे, थोपते जाएंगे, उतना हम अपने आप से दूर होते जाएंगे। और दूर होना मतलब क्या? अपने आप से दुखी होना। सबसे ज्यादा आनंद कब आता है? सबसे ज्यादा आनंद आपको आता है डीप स्लीप में सोते हैं जब। ये तो कोई डिनाई नहीं करेगा। उसी समय हम सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं अपने आप से, क्योंकि एक भी गुण हम चढ़ा के नहीं सोते, सब उतार देते हैं, इवन अपना शरीर छोड़ देते हैं। उस समय शरीर से आइडेंटिफाइड नहीं रहते हैं। वी आर नॉट आइडेंटिफाइड टू अ सिंगल थिंग। नो शीट, जो 5 शीट्स है हमारे अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय, उस सारे से हम लोग छूट जाते हैं। मन लीन हो जाता है पूरा का पूरा। शरीर को भी हम लोग ने छोड़ दिया, उस समय संस्कार भी नहीं रहते, सारे के सारे लीन है, इसीलिए हमारा आनंद सबसे ज्यादा है उस समय। वो जो थोड़ा सा जो है बचा हुआ, वो इग्नोरेंस, अज्ञान है, इसीलिए हम लोग की उस समय समाधि नहीं लगती। वो तो समाधि और सुषुप्ति में ज्यादा अंतर नहीं है। There's not much difference between सुषुप्ति and deep sleep। मैं बोल रही हूँ नहीं है, पर बहुत जन्मों का अंतर हो जाता है, बिकॉज दैट अज्ञान इज सो थिक। उसका पर्दा हटाने में ही हमारी साधना तो उसी के लिए लगेगी ना। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती रहती है। क्या दिखती रहती है उसको? सिर्फ एक चीज, वरस वर्णीय सैव, एक ही चीज जो वर्णीय है, मुझे वही चाहिए। वरमाला लेके एक लड़की चलती है
वर को देते। हाँ, उसके पास में कितनी वरमालाएं रहती है? अम्मा आप क्या बात कर रहे हो, वरमाला तो एक ही रहेगी उसके हाथ में, एक ही रहती है ना, क्योंकि वर तो उसको एक ही चूज करना है। हम एज जीव कितने सारे वरमालाएं ले लेके घूमते हैं। हमको अच्छा पति भी चाहिए, अच्छा पत्नी भी चाहिए, अच्छे बच्चे भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, अच्छा पैसा भी चाहिए, अच्छा जॉब भी चाहिए, उधर भी घूमने जाना है, ये भी अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए। ढेरों 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 वर्णीय है हमारे लिए, एक नहीं है। और वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग जो है क्या क्या खोते रहते, जो चीज खत्म हो जाएगी उसके लिए हम लोग जो है अपना पूरा का पूरा जीवन खपा देते। We are putting everything into a hole that will never be filled. And ultimately, when everything is gone, we'll be very very sad. अरे देखिए, सबसे खराब चीज होती है जब at the time of death, जब हम सबका एक दिन आएगा, we all will have to face that moment. I'm talking about that moment when that will be a last moment on earth in this body. सबका आएगा हमारा. At that time we should not be guilt conscious. What is that guilt conscious? Bhagwan gave me so much. I did not utilize it to the maximum. I utilized it for संसार, not for him. हमारी पर्सनल है और वो पिंच करता है उस समय बहुत ज्यादा. The whole life sadhana should be to get out of that guilt feeling that we should not have at the ultimate. बहुत बेकार फीलिंग होती है. I always say we should try to make our death good so that we can make our life good. हम लोग क्या करते हैं? We try to make our life good और उससे हमारा डेथ हमारा बिगड़ जाता है. We should try to analyze our life and make our death better, the best death that we can have. और उसमें क्या होता है? We can make our life good. पर हम लोग उल्टा कर देते हैं. उल्टा करने के चक्कर we are concentrating on life, not at all bothered about death. So ultimately what will happen? That guilt conscious के साथ में ही हम लोग will live, and that is not good. कि भगवान ने इतना दिया, I got opportunities, I got scripture in my hand, I got people around me to tell me, but what did I do ultimately? I did not do anything. I was running after this samsara. जिस क्षण हमको ये फील पिंच करेगी in our life, we will become a sadhak. Till then we are a sansari. Sadhak meaning what? He has got a good sadhak. Sadhak meaning what? He has only one varaniya. वरणीय सत्व, एक ही वरणीय है उसके जीवन. वरस्तु स वरणीय से वह एक ही, उसका वर्ण ज्यादा नहीं, एक ही वरमाला है उसकी. आप उसको भगवान बोलिए, आप उसको सेल्फ बोलिए, आप उसको आनंद बोलिए, जो भी. आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, व्हाटएवर नेम यू गिव, बट थर्स्ट शुड बी देयर दैट वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग. हम गलत कहाँ हैं? कहीं ना कहीं तो we have wrong notions, that is why I'm here. और क्या गलत है वहां पे? एक ही चीज बोला जा रहा है कि एक ही आत्मा एग्जिस्ट करती है, but I don't feel that. आत्मा एक कैसे हो सकती? सबकी आत्मा अलग अलग है. आत्मा आ रही है, जा रही है. हम लोग सनातनी होके, हम लोग हिंदूज होके, हम लोग को बेसिक ही हमारे बारे में, कल्चर के बारे में नहीं पता. So you must be knowing. दूसरे लोग बोलते हैं हम लोग को 33, हम लोग के पास में 33 करोड़ देवताएं हैं. ये सब तो गलत बातें हैं. हम लोग बोलते हैं कि हाँ आत्मा इधर उधर भटक रही है. ये सब कलोकल में बोला जाता है. आत्मा, where will आत्मा go? That is not आत्मा, that is जीवात्मा. ये सब हम ही लोगों को पता नहीं.
We have the subtle body, we don't know such सूक्ष्म शरीर, we don't know पुनर्जन्म का concept, पता नहीं अगला जन्म है भी कि नहीं. We are very very vulnerable because we are not too much into our shastra, we are not clear, we are not having clarity of vision of our shastra. इसलिए हम लोग ऐसी बातें करते हैं, लोग हम लोग को बोलेंगे तो हम लोग भी उनकी बात को मान लेते. Very easily we get diverted, very easily. ठीक है, तो जब हम लोग को पता चले अपनी गलती, to rectify a mistake, that is called sadhana. And who rectifies it? Only a sadhak. वही सिर्फ बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे मेरी गलती है और मुझे यहाँ पे साधना करनी चाहिए. The more the thirst to rectify myself, the more intensity will be there in my sadhana. मैंने ये गलत काम किया है, मेरी गलती है, मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा दिखाता हूँ या फिर कि मैं बहुत साधना करता था. So many aspects that we know. The personality में हमारे कई सारे aspects होते हैं ना. There is a personality that the sansar also knows, I also know. There is a personality that the sansar knows, I don't know. There is a personality which I know, the sansar does not know. There is a personality which sansar also does not know, I also know. The four things. है ना? एक तो संसार को भी पता है, मुझे भी पता है. एक पर्सनालिटी का ट्रेट हम सब में, we all have. एक है संसार को पता है और मुझे नहीं पता, डेंजरस है थोड़ा सा इसमें. एक है जो संसार को नहीं पता पर मुझे पता है. इसमें एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट अवर साधना, बिकॉज आई नो दीज थिंग्स आर. एक होता है जो संसार को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, गुरु को पता होता, ईश्वर को पता होता. जब समर्पित चित्त से हम जाते हैं, when we are surrendered to the Lord, when we are surrendered to the Shastra, when we shall surrender to the Guru, He will come and He will tell us that where we should rectify ourselves. The more is the thirst to change ourselves, the more will be the intensity in our sadhana and we will grow much more faster. कभी-कभी एक और चीज मैंने देखा, मैंने खुद में पर्सनल लाइफ में मेरे भी और लोगों के भी देखा, जब हमसे कोई बड़ी बहुत गलती होती है एज अ साधक, sometimes it happens that the sadhak commits a blunder in his life. There are many sadhaks, they are all doing sadhanas, but from them one sadhak has committed a blunder. A blunder meaning a real blunder, huh? Not talking about flimsy blunders. A real blunder उससे create हो गया. Now what happens? Sometimes it happens that he will grow faster than the others because of the guilt feeling of that blunder. मतलब वो उसके लिए एक boon हो गया, boon in disguise हो गया कि उसने एक blunder कर दिया, but now his rate has become fast, very fast. वो आगे निकल जाते हैं सबसे. तो क्या चीज वो साधना हम बनाए, वो बुद्धि हमको भगवान ही दे सकते हैं थ्रू आवर पुण्य, थ्रू आवर प्योरिटी. हम लोग को साधना करते रहना पड़ेगा टू गेट आवर प्योरिटी, टू मेल्ट द लॉर्ड्स हार्ट, टू फर्मनेस इन अ गोल इन अ शॉर्ट स्पैन इंक्रीजेस द अट्रैक्शन ऑफ दैट साधना. फर्मनेस जो होता है ना हमारे वो शॉर्ट स्पैन में जब आता है, छोटी छोटी, दैट इंक्रीजेस, हमारा अट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है. ठीक है. और उपनिषद क्या बोलता है? उपनिषद भी बोल रहा है बार एक ही चीज बोल रहा है, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद अवेदित महति विनष्टि. बहुत आपका विनाश हो जाएगा अगर आप इस जन्म में रहते रहते ही उस सत्य के बारे में अनुसंधान ना करें. इफ यू डोंट नो द ट्रूथ देन यू आर नोवेयर, यू विल रीच नोवेयर, यू विल गेट डिस्ट्रॉयड. महति विनष्टि. हम लोग डरते ही नहीं है. क्यों नहीं डरते? क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है. पढ़ते क्यों नहीं है? हम जानते ही नहीं है कि ये सब होता है. मूवीज के बारे में तो हम जानते हैं, हम लोग दूसरी चीजों के बारे में जानते हैं. कपड़ा कहाँ सेल में मिल रहा है जानते हैं, कहाँ पे सस्ता मिलेगा ये जानते हैं, पैसे कैसे कमाना है ये जानते हैं, बाकी सब चीजें जानते हैं. इसको हमने डेवलप नहीं किया, इसीलिए नहीं जानते हैं. जानना न जानना अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. A person
See, a person who's a very good dancer, how has he become a good dancer? Because he was interested in that. He collected that knowledge. He undertook a training about that. He went in search of a good guru. So he became a good dancer after that, after practicing, after gaining knowledge. Similarly, here also, if we have that thirst that I have to reach that goal, I will start collecting. पर हम लोग ऐसे हैं, ऐसे भोंदू हैं सबके सब, हम लोग संसार में बैठ के हम लोग किस तरह से जीवन गंवा रहे हैं भी, डिस्ट्रैक्टेड, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड लाइफ। सारे महात्मा, एवरी डे वन शुड हैव अ गोल कि हम लोग एक महात्मा के बारे में, एक भक्त के बारे में उसकी जीवनी पढ़े। इंडिया is full of lives of saints. Full. पुराण का एक पत्ता, एक पन्ना पढ़े, गीता प्रेस फालतू में छाप छाप के रख रही है। किस लिए रख रही है पता नहीं। जब तक हमको पता नहीं चलेगा ये कहां से आता है, ये सब मतलब साधे के लिए अट्रैक्शन कहां से आता है? सत्संग। Only satsang can create the attraction for the sadhana. How will I be able to know what sadhana to be done when I know my negativity? How will I know my negativity when I do satsang? देखिए, सत्संग बहुत तरह का होता है। स्वाध्याय कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, टीवी में बहुत अच्छा सत्संग आता है, मोबाइल में सुन सकते हैं सत्संग, शास्त्र पढ़ सकते हैं, कि कितने सारे बुक्स है हमारे पास। एक जीवन कम पड़ जाएगा। बट सत्संग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्संग करते करते ही देन आई शुड हैव दैट साधक मन, नॉट अ बाधक मन। एट प्रेजेंट आई हैव अ बाधक मन। बाधक मन मीनिंग व्हाट? अ माइंड दैट डज नॉट फेवर माय साधना। I want to sit and do sadhana. I want to sit and do jap. 10 malas I want to do. 10 बहुत मिनिमम नंबर है। लोगों को मैंने 100 माला जपते देखा एक दिन में। बड़े बड़े जप, छोटा वाला जप नहीं, राम 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 वाला नहीं, बड़ा बड़ा मंत्र को 100 मालास देखा है जप करते हुए। क्या तेज है उनका। लेडीज, गृहस्थ, हम लोग करते ही नहीं। हमारे पास टाइम है, सब कुछ है, हम हाथ में ही नहीं लेते जप माला। वो क्यों नहीं लेते? बाधक मन के कारण। मन हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा हुआ। ये साधना से ही ये बाधक मन हटेगा हमारा। ये नारद भक्ति सूक्त में भगवान नारद जी एक सूत्र देते हैं, वहां पे बोलते हैं अभिमाना द्वेषाच और प्रिय दैन्य दीन प्रियत्वाच। भगवान को दीनता प्रिय है, अभिमान जो है वो प्रिय नहीं है, क्रोध राग द्वेष प्रिय नहीं है, और हम उसी में हमारा जीवन है। कहीं पे भी आप बैठो बात करने के लिए, if you start talking, if somebody talks about some negativity of someone or criticism of somebody, our mind will naturally go to that topic. और आप कभी ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में कहीं पे सुनो, your mind will tell you, अरे ये टॉपिक हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, just get up and go that side. I don't know what they are talking about. It is not about of my interest. सबसे ज्यादा तो वही इंटरेस्ट होना चाहिए, बस बाकी का तो सारा। आप एक भी व्यक्ति को देखो संसार में, कोई ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ है? एवरीथिंग, एवरीबडी इज चेंजिंग। उसका नेचर जो है अगर खराब है, दैट विल आल्सो चेंज। भागवत में एक लाइन आती है, मेरे ख्याल से वो 12th कैंटो में आती है। यस, इन 12th कैंटो, 12th स्कंद में आता है, न निंदो न वंदो। बहुत ज्यादा वंदना भी मत करो, बहुत ज्यादा निंदा भी मत करो किसी, क्योंकि निंदन किया किसी का, ये तो हमको बचपन में दादा दादी नाना नानी भी घर पे बोलते थे। बहुत ज्यादा किसी की निंदा मत करो, फिर क्या करना पड़ेगा? उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा किसी की स्तुति मत करो, क्यों? निंदना पड़ेगा। बैलेंस, सम रखो ना आपको। जो गीता में बार बार भगवान चाहते हैं, कितनी ही जगह उन्होंने सम 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 शत्रु जनिते च,
सम सुख दुख क्षमी, सब जगह सम 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 बोला है। हम लोग नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमको पता नहीं है, हमने कभी सम रह के देखा नहीं है उसका आनंद। ये सारी चीजें ना रस के ऊपर ही डिपेंड करता है। एवरीथिंग, आवर माइंड, आवर पर्सनालिटी डिपेंड्स ऑन वेयर वी गेट रस। आप भी इस बात को एग्री करते होंगे। जहां से हमको रस मिलता है वहीं पे उसी वही बात को हम सुनते हैं। That work only we do, we get attracted to those people only, we get attracted to those situations only where we get rus. So naturally our personality will be molded as per the rus that we get in. किसी किसी को वेदांत में इंटरेस्ट है तो उसका पर्सनालिटी वैसा हो जाएगा, किसी किसी को भक्ति में इंटरेस्ट है वैसा हो जाएगा, किसी किसी को क्रिटिसिज्म में इंटरेस्ट है वैसा हो जाएगा। It depends, all depends on what we are, what we like, what हमारा क्या नेचर है, कैसा हम चाहते हैं वैसा वैसा होना चाहिए, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। तो हमारे ही हाथ में है हम लोग कैसा बनाएं अपने आप, कैसा हम रखें अपने आप, क्या चाहे हम अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट अलर्टनेस हमारे जीवन में जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग जो है फर्स्ट वाला श्लोक चैंट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं सबके पास में है आपका। मैं चैंट कर रही हूँ, यहाँ पे तो रिपीट लीड एंड फॉलो नहीं हो पाएगा, मैं चैंट 2 बार कर दूंगी, आप लोग देखिए उसको, फिर हम लोग इसमें आते। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयता भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता आत्मेच्छा व्यवसीयता निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यता वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम्। सबसे पहला वाला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज द साधना? वेदो नित्यमधीयता, शास्त्र वेद को जो है उसको पढ़ना चाहिए। See, if you are a good sadhak, please try to learn this 5 verses. साधना पंचकम ये मुखाग्र होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो वेदो नित्यमधीयता, ये सोपान नंबर 1 हमने देखा ना, सोपान पंचकम भी बोलते हैं इसको, सोपान पंचकम। तो सोपान 1 is what? Ved should be studied definitely. वेद should be studied definitely, पढ़ना ही चाहिए। नित्यम अधीयता, नित्य पढ़ना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है वेद की? वेद जो है मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, जिसमें ब्रह्म मंत्र पोर्शन है और ब्राह्मणात्मक है, कर्म कांड भी है और मंत्र पोर्शन भी है जो हमको सेल्फ के बारे में बताता है। मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, तो वेद जो है they are the fundamental source of all our authorities. What am I today? हम आज क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहिए, कुछ चाहिए तो डिजायर को कैसे फुलफिल करना है, कौन सा कर्म करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब चीजें वेदों में क्या है। अच्छा, वेद हम कब पढ़ेंगे? जब हमको श्रद्धा होगी उस पर। ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताने का मायने क्यों बता रहे हैं? Why has it been told that वेदो नित्यमधीयता? So that we have श्रद्धा। गीता में क्या बोला गया है? गीता में बोला गया है श्रद्धा मयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव स, जो जैसी श्रद्धा जिसकी होती है वो वैसा होता है। अगर किसी की श्रद्धा भूत पिशाच पे है वो वैसा बन जाएगा, भूत को सिद्ध करेगा। अगर किसी की देवता में है वो वहां करेगा। अगर किसी का पितर में होता है, हाँ हमारे पितरों का बहुत आशीर्वाद है हमें,
वो वैसा कर्म करेगा। यो यत् श्रद्धा स एव सः, जैसी जिसकी श्रद्धा है, किसी किसी का स्टार्स में, प्लैनेट्स में, किसी किसी का अंगूठियों में, देखा होगा हाथ में पूरे के पूरे 5 उंगलियों में अंगूठियां बड़ी, सब में 10 पत्थर। बोले क्या है ये जेम्स जो है वो हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा है। मोती पहना है कान में भी, इसमें भी पुखराज पहना है, माणिक पहना है बड़ा बड़ा सा, तरह तरह का होता है ना, और भी तरह तरह के जेम्स होते हैं। हाँ, आई डोंट डिसएग्री, मुझे पता है, हाँ होता है, कुछ ना कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है, ये सब शास्त्र है, तो इसलिए मैं डिनाई नहीं करती हूँ। वास्तु शास्त्र पे किसी किसी का होता है, ये आग्नेय कोण है, ये ईशान कोण है, ये नैऋत्य कोण है, यहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आश्रम में भी मैं रहती हूँ, तो नंदू बाबू आए थे, नंदू बाबू had told me not to stay here in this Swamiji's room. He said, Amma, ब्रह्मचारी, he used to call me ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारिणी जी, अब कभी भी स्वामी जी के मेरे पीछे ही है ना, ये मना था। और ब्रह्मचारिणी जी, कभी भी आप इस कमरे में मत रहना। So I thought, I don't know why he's saying like that. नहीं, ये गेस्ट के लिए बना है, हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ गेस्ट बन के रहें। यहाँ पे जो भी रहेगा वो फटाफट यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे इसीलिए आप मत रहिएगा कभी। तो सोच मी, आप यहाँ पे उस कमरे में मत जाइएगा कभी। ठीक है, ठीक है। So some people have that, जैसे यो यत् श्रद्धा स एव सः, जो जैसी श्रद्धा है जिसकी, तो वैसा बन जाता है। और वहां से भगवान भी उसकी उस श्रद्धा को पुख्ता करते हैं। भगवान ऑल्सो इंटेंसिफाइज दैट श्रद्धा है। जहां जिसकी श्रद्धा है तो बन जाएगा बिना श्रद्धा। हाँ, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे, जो व्हाट इज माय नोशन एक्चुअली विल मेक माय पर्सनालिटी। अगर मेरा नोशन है, जैसे विमला माँ आई थी, विमला माँ वाज टेकिंग द sutras of successful living, successful life from the Gita. So if you remember, she had said कि हम सब लोगों ने, we have some or the other सूत्र in our life also. हम सब लोगों ने अपना कोई ना कोई सूत्र बना के रखा है। That principle we have made in our life by our experiences. वो notion जो है वही हमको गाइड करते हैं। Those notions make our personality. I'm not talking about right or wrong. I'm just talking those notions make my personality. Who is Ananya Chaitanya? The notions. Who is Ananya Chaitanya? The notions that has been made, that has developed her to be Ananya Chaitanya till now. She is that notion only, the personified form. और कुछ नहीं है। हम जो भी है वो personified क्या है? Personified form of our notions. इसी से अपेक्षा मत रखो, अपना काम करते चलो। सुखी रहने का जीवन का तरीका यही है, निरपेक्षम भव। आशा ही दुखम, आशा रखना ही परमो दुखम। भागवत में परमो दुखम, आशा ही परमो दुख। अगर दुखी बनना है, आशा कर लो किसी एक व्यक्ति से, एक जगह से, दुखी रहोगे, उसी के पीछे सोचते रहो। ऐसे बहुत सारे रूल्स हम लोग, नोशंस हम लोग बनाते हैं अपन। वहां जाओगे तो दुखी होगे, उस व्यक्ति के साथ में बात ये वाली करोगे, अननोइंगली सबकॉन्शियस में हमारे रूल्स नोशंस बनते रहते हैं। नॉट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑन दिस टॉपिक विद दिस पर्सन। बनता है कि नहीं? बनता है, सबका बनता है। नो, ये वाली चीज अगर हम लोग वहां जाके करेंगे, ये ठीक नहीं है, इस व्यक्ति से इस बारे में बात करना है, वहां से जल्दी आ जाना है, वहां नहीं जाना है। तरह तरह के इमोशंस हम लोग इस तरह से बनाते हैं, और बना के लोग क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली मेकिंग आवर पर्सनैलिटी। वो नोशंस जो है, इट कैन बी राइट ऑल्सो, रॉन्ग ऑल्सो। कभी कभी समटाइम्स दोज नोशंस इन टाइम आर करेक्टेड। गलत हुआ अगर, मेक नोशंस, आई से मेक योर नोशंस, अच्छे से आप नोशन अपना बनाओ। धारणा, नोशन में धारणा, कोई प्रिंसिपल हमने बना लिया अपने जीवन में, एटलीस्ट हम बना रहे हैं ना, कुछ तो हमने लगाया एट स्टेक, हमने कुछ तो इन्वेस्ट किया। मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बताई, किसी एसएमईज लोगों ने मुझे एक अच्छी बात बताई। कहीं पे मैं गई थी किसी के घर पे, तो वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, सुबह सुबह का टाइम था, मैं गई थी,
तो वो बच्ची जो है स्कूल के लिए तैयार हो रही है और स्कूल में उनका उस दिन एक फेयर था। फेयर होता है ना छोटा छोटा वो सब, और वो फेयर में क्या कर रही थी, वो छोटे छोटे बुक मार्क्स हो, वो हाथ के ब्रेसलेट हो, खुद ही घर पे ही वो सब स्टिकर से कुछ कुछ लगा के की चेन हो, वो सब बना के उसने एक ट्रे में सजाया था, वो बेचेगी वहां पे। और हम लोग कई सारे लोग थे तो वहां पे मिशन से आए हुए थे, तो सबको बहुत अच्छा लगा। प्लस प्रोत्साहित करने के लिए वी वांटेड टू एनकरेज दैट लिटिल गर्ल, बहुत छोटी सी थी, क्लास 5 या 6 में होगी। तो वी ऑल परचेज्ड आल्सो, और उसको भी बहुत अच्छा लगा, एंड शी हैड मोर आल्सो फॉर द स्कूल। So she was very very excited to go to school that day because she is going to start her business like that. So बाद में आके मुझे बताया हम लोगों ने कि we like this instinct or this notion of business minded people that they never pull their children away from losses also in investment. This is the notion. फिर से बताओ, फिर से कि अगर कोई व्यक्ति बच्चा है उनके घर में, उसको वो लोग इन्वेस्ट करने से लॉस भी अगर हो रहा हो, दे विल नॉट आस्क हिम टू कम बैक, वो मना नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ही विल लर्न फ्रॉम दैट आल्सो। आप इन्वेस्ट करो, लगाओ, आप सीखोगे उससे भी, थोड़ा नुकसान होगा ना, बट वो जो जीवन भर का यू गॉट द एक्सपीरियंस, यू गॉट द लर्निंग, राइट नोशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात, I don't know whether it is correct or not, but somebody when they told me this was a striker as if. फिर मुझे याद आया कि हाँ, बचपन में हमारी भी माँ ने कभी भी हम लोग को तोड़ फोड़ करने से रोका नहीं। कुछ खोल दिया, कुछ टूट गया, क्यों? क्योंकि उसी तरह से आदमी सीखता है। One starts learning like this only. जब हम लोग मना कर देते हैं बच्चे को कि डोंट मेक मिस्टेक, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक अ पेरेंट मेक्स, बाय स्टॉपिंग हिम फ्रॉम मेकिंग अ मिस्टेक। खूब मिस्टेक करना चाहिए, उससे सीख के आगे बढ़ता है। दिस इज अ नोशन। तो आई फील गुड अ पर्सन इज मेकिंग अ नोशन, वेरी गुड, दैट विल बी करेक्टेड इन टाइम बाय द परफेक्ट सिस्टम व्हिच वी आर इन। We all agree that the system is perfect. System is perfect and it will change our notion if it is wrong. तो हम लोग देखते हैं टाइम खत्म हो गया। तो ये जो notions है, ये हम लोग को वेद, जब वेदो नित्यमधीयताम, when we are reading this continuously, what is happening? The Veda, the Shastra, the Puran, we will see what are the portions of tomorrow. We will see the meaning of Vedas, what is the meaning of Vedas. So this will change rectify our notions, rectify our way of life, rectify our hardness or softness in mind. कहाँ पे soft होना चाहिए, कहाँ पे hard होना चाहिए. We all should know that. We are very somewhere where we should, with our elders, with our parents, with the respectable people, we should be very very soft. Wherever we are indebted to, there we should be very very soft. Sometimes we become very very hard there. भगवान is not very happy with that. Ultimate क्या होना चाहिए हमारे सारे actions से? My Lord should be happy, my Lord should be melted. Because ultimate fruit, if you remember Mandukya Upanishad, नहीं, Kenopanishad, in that it was written, Ishwar takes impressions. Ishwar is the one who takes impressions. And we, in each and every action, we are impressing him. कोई एक impression हम डाल रहे हैं उस ईश्वर में, और impression डाल के क्या हो रहा है, फिर वो जब fruit of action हमको देंगे, वो fruit of action will be conducive or vice versa. अगर conducive हुआ तो हम लोग खुश होंगे naturally, because we have melted भगवान. वो जैसा चाहते हैं वैसा हम रहे। भगवान ने पूरा गीता में 12th चैप्टर में वही बोला है कि कंड्यूसिव तो मेरे से कैसे रह सकते, यो मत भक्ता समय प्रिय, बार बार झड़ी लगाती है, यो मत भक्ता, यो मत भक्ता। Okay, so this is what a sadhak should be, and sadhana's importance in our life should be. ठीक है? So meaning of the Vedas, वेदो नित्यमधीयताम, यहाँ से लोग कर देते हैं।
here we'll see it tomorrow because today time is over. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namah. Harihi Om.